पहले बांग्लादेश में भी करीबन 6 महीने मैंने काम किया। मैं चला गया ढाका। ओके, पहले हम हाइलाइट्स लगाएंगे फिर अब मैं बोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি সুমের, আপনারা দেখছেন সুমের রিएक्शंस। আমি ভালো আছি, আশা করি सभी ভালো আছে। यहाँ पे जी बात करेंगे भारत के बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की। उन्होंने अपना बहुत लंबा अरसा बांग्लादेश के अंदर गुजारा, ढाका में गुजारा। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने बांग्लादेश में आके, ढाका में आके मुलाजमत भी की एक होटल के अंदर आके। ठीक है, यहाँ पे जी अक्षय कुमार अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताते हैं कि उस वक्त पे किस तरह उन्होंने बांग्लादेश में जाना चूज़ किया और वहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे उन्होंने काम किया। अभी आप लोग से मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ, क्या मज़ीद डिटेल्स हैं इसके हवाले से। अक्षय कुमार क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेशियों के बारे में। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स। पहले बांग्लादेश में भी करीबन 6 महीने मैंने काम किया। मैं चला गया ढाका। ভারতের একজন জনপ্রিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমার বাংলাদেশের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করে থাকেন। বাংলাদেশের সাথে নাকি তার গভীর স্মৃতি জড়িত আছে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা বাংলাদেশ সম্পর্কে কি বলছেন, বাংলাদেশকে নিয়ে কিভাবে স্মৃতিচারণ করছেন, আজকের এই প্রতিবেদনটি এই নিয়ে সাজিয়েছি। তবে সবার প্রথমে আমরা দেখে আসব নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে অক্ষয় কুমার কি নিয়ে আলোচনা করছেন। अब 3 या 4 3.5 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना शरीर को चाहिए। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। দর্শক, অক্ষয় কুমার নরেন্দ্র মোদীর একটি ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। তারপরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন, অক্ষয় কুমার আবার আলোচিত হয়েছিলেন। দর্শক, অক্ষয় কুমারের এই ইন্টারভিউ থেকে জানা গেল নরেন্দ্র মোদী বলছেন তিনি 3 ঘন্টার মতো প্রতিদিন ঘুমান। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि मैं पहले बांग्लादेश में भी करीबन 6 महीने मैंने काम किया। आपके ढाका में पुरबानी करके एक होटल है। দর্শক, একজন সাংবাদিক অক্ষয় কুমারকে প্রশ্ন করেছিলেন, তখনই তিনি স্মৃতিচারণ করলেন বাংলাদেশ সম্পর্কে। তিনি বললেন, অনেকে হয়তো বা জানেন না, আমি বাংলাদেশে অতীতে ছিলাম এবং বাংলাদেশের পুরবানি নামে একটি হোটেলে চাকরি করতাম। দর্শক, ভারতের অক্ষয় কুমার অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বলভাবে তিনি স্মৃতিচারণ করলেন বাংলাদেশ সম্পর্কে, বাংলাদেশের ঢাকায় কাটানো সময় সম্পর্কে। দর্শক, আরো কি বলছেন অক্ষয় কুমার বাংলাদেশ সম্পর্কে, চলুন জেনে আসি। मैं चला गया ढाका। वहाँ भी एक होटल था पुरबानी करके। सो देन उसके बाद मैं चला गया फिर बैंकॉक। उसके बाद फिर दिल्ली आया, दिल्ली में काम किया। তারপর আমি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় চলে গেলাম। ঢাকায় একটা হোটেল ছিল পুরবানি নামে, সেখানে আমি দীর্ঘদিন চাকরি করেছি। ঢাকার পরে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে চাকরি করেছি। তারপরে দিল্লিতে চলে আসলাম। দর্শক, অক্ষয় কুমার তার জার্নি শেয়ার করতে গিয়ে প্রায় সময় বাংলাদেশের কথা বলে থাকেন। অতীতেও বলেছেন, এখনো অক্ষয় কুমার বাংলাদেশের ঢাকার সেই হোটেলটির কথা স্মরণ করে থাকেন যেখানে তিনি চাকরি করতেন সামান্য কিছু বেতনের বিনিময়ে। দর্শক, অক্ষয় কুমার তার অতীতকে সম্মানের সাথে স্মরণ করে থাকেন। ভারতের এই জনপ্রিয় অভিনেতা সম্পর্কে আপনি আপনার মতামত কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দিন। দর্শক, এরকম আরো ভালো ভিডিও নিয়মিত পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং আপনার পছন্দের মানুষের সাথে আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করুন। আজকের মতো এতটুকুই থাক, আল্লাহ হাফেজ। जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी अक्षय कुमार ने अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज शेयर किया। उस टाइम पे वो किसी बॉलीवुड का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया कि वो बांग्लादेश में जाएंगे, बांग्लादेश में रहेंगे और बांग्लादेश में ही काम करेंगे। बांग्लादेश में ढाका में काफ़ी लंबा अरसा एक होटल में किसी वेटर की आई थिंक को जॉब किया उन्होंने, और फिर काफ़ी अच्छा टाइम उनका गुजरा। और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इस टाइम को याद करता हूँ और बहुत मज़े का टाइम था। एक वो वक्त था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी देर तक काम करने के बाद फिर वो ठीक है शायद थाईलैंड गए और फिर जो है वो वापस दिल्ली में आए। ठीक है,
तो यहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज शेयर किया जो बहुत ज़्यादा एक सरप्राइजिंग है उनके फैंस के लिए। वेल आप लोग क्या कहेंगे? बांग्लादेश की उन्होंने काफ़ी सारी तारीफ़ की, बांग्लादेशियों की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।